Hello everyone, how are you? I hope you are fine. So, this is the fourth part of chapter Reproduction in Plants. So, let's see. There are some topics to be covered today in this video are given as follows. Artificial method of vegetative propagation, and these methods are cutting, layering, grafting and tissue culture. And also we will discuss about advantages of vegetative propagation and disadvantages of vegetative propagation. So we will start with the artificial method of vegetative propagation. So plants can also be reproduced by some artificial methods, such methods are used by farmers, gardeners to grow a variety of plants. This is done to grow plants with desirable characteristics. Very good use of this vegetative method of propagation, vegetative propagation का artificial method, because we can get desirable characteristics in a plant. जो artificial method से plants उगाए जा रहे हैं उनमें क्या होता है, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसा हम चाहते हैं उस तरह की उसमें क्वालिटीज हम ला सकते हैं, ठीक है, इन मेथड की हेल्प से. Okay, some methods of artificial propagation are as follows: cutting, layering, grafting and last one is tissue culture. So let's start with cutting. This is the cutting. This is about the cutting. And in this method a piece of stem with the bud is cut and planted in the moist soil. इसमें क्या होता है कि एक स्टेम का जो पीस लिया जाता है, लेकिन उस पीस में क्या होना चाहिए, एक बड होनी चाहिए, आपकी एक बड उस पीस में जरूर होनी चाहिए. इस तरह की एक स्टेम की पीस लेकर उसको कट करके निकाल कर और प्लांट कर देते हैं मॉइस्ट सॉइल में, ठीक है. After a few days, roots and leaves develop from the cut stem. जो कट करके पीस लिया हुआ स्टेम का, उसमें से कुछ दिनों बाद क्या होता है, लीव्स और रूट्स ग्रो करती हैं इसमें, ठीक है. दिस मेथड इज यूज टू ग्रो प्लांट्स लाइक रोज, बोगेनविलिया एंड सुगर केन. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स दैट आर ग्रोन बाय द कटिंग मेथड, ठीक है. दिस इज द rose plant. Here you can see this is the small piece of stem that is taken, but it has bud. bud क्या होता है आपका, जब आप रोज प्लांट देखेंगे तो उसमें देखेंगे यहाँ पर छोटी सी आउट ग्रोथ होती है, जो बड होती है उसी से लीव्स डेवलप करती हैं और यहाँ अंडर द सॉइल यहाँ पर जो है रूट्स डेवलप कर जाती हैं, ठीक है. ये जो प्लांट का पार्ट होता है जहाँ से बड निकलती है उसको बोलते हैं नोड, ठीक है. आगे आपको सुगर केन वाले एग्जाम्पल में आपको मैं समझाती हूँ नोड्स और इंटर नोड्स के बारे में. ओके, सो हियर यू कैन सी दिस इज अ स्मॉल piece of stem has taken and planted into the soil. After some time it develops new leaves and under the soil it develops roots, and after some time when it develops properly it also gives flowers. So next example is bougainvillea. Here you can see this is the bougainvillea flower and this is the stem. So cutting is also done in the bougainvillea plant. Next is bougainvillea. This is a big tree of bougainvillea that you have seen many times, okay. And next is sugar cane. Yes, here you can see sugar cane.
here you can see very easily this part. This part is a node part and it has a small bud. Okay, and this reproduces by this small bud. Sugarcane reproduces by this small bud. So this part and this part is known as node, and between the two nodes space या डिस्टेंस इट इज नोन एज इंटरनोड. तो जो ये वाला पार्ट होता है, दो नोड्स के बीच का जो पार्ट होता है वो इंटरनोड होता है. ये नोड है, ये आपका नोड है और ये आपका नोड है. इन दोनों के बीच में जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं इंटरनोड. ठीक है, लेकिन जो बड निकलती है वो हमेशा ही नोड पर निकलती है, यहाँ पर. ठीक है, इन दो में आप देख सकते हैं ये नोड पर एक बड ग्रो कर गई है. अच्छा, जब इस वाले पीस को यहाँ से ऐसे काट के इस वाले पीस को जो है जब सॉइल में कर देते हैं, मॉइस्ट सॉइल में लगा देते हैं, प्लांट कर देते हैं, तो इसी वाले पार्ट से जो है आपका न्यू प्लांट ग्रो करता है. ओके, नेक्स्ट इज लेयरिंग. सो लेट्स सी व्हाट इज लेयरिंग. इन दिस मेथड a lower branch of plant is bent and small portion of it is covered with moist soil. इसमें क्या होता है कि जो प्लांट होता है उसकी लोअर ब्रांच जो होती है नीचे अपने आप बेंट हो जाती है, या समटाइम्स अगर हम चाहते हैं तो उसको क्या करते हैं नीचे की तरफ बेंट करके और इसको सॉइल के अंदर दबा देते हैं. इसका स्मॉल पोर्शन जो होता है, एक पूरी जो ब्रांच होती है उसमें से स्मॉल पोर्शन को सॉइल में इसको बरी कर देते हैं. लेकिन क्या होता है इसमें, द बार्क ऑफ कवर्ड पोर्शन इज रिमूव्ड बिफोर कवरिंग विथ सॉइल. जो पार्ट हम उस ब्रांच का सॉइल के अंदर कर रहे हैं उस पोर्शन के जो बार्क होती है, बार्क मतलब आउटर कवरिंग ऑफ द स्टेम. जो स्टेम होता है उसके ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है, उसको धीरे से निकाल देंगे और उसके बाद उस पोर्शन को सॉइल में अंदर बरी कर देंगे. ठीक है, After a few days, roots develop in the buried portion of the branch. उस जो सॉइल के अंदर ब्रांच का जो पार्ट है उसमें से न्यू रूट्स डेवलप करती हैं. और क्या होता है, द ब्रांच इज देन कट फ्रॉम द मेन प्लांट. एक्चुअली अगर उसमें से जो रूट्स निकल आई हैं तो जो मेन प्लांट से जो ब्रांच आई है उस ब्रांच को हम बीच में से कट कर सकते हैं, और जो ये जिसमें रूट्स डेवलप हो गए ये एक न्यू इंडिविजुअल प्लांट में देन ग्रोथ कर जाता है और एक इंडिपेंडेंट प्लांट बन जाता है. ओके, दिस मेथड इज यूज टू प्रोपेगेट बोगेनविलिया, रोज, जैस्मिन. सो लेट्स सी डायग्राम ऑफ दिस कटिंग पार्ट, लेयरिंग. सो हियर यू कैन सी दिस is a plant. It can be bougainvillea, rose, jasmine. So this is the lower branch. ये जो आप देख रहे हैं ये लोअर ब्रांच है इसकी, और इसमें से जो इस ब्रांच को बेंट किया गया है, बेंट करने के बाद इसको एक पैग मीन्स होता है एक जो वुडन का जो लॉग होता है, एक टुकड़ा होता है जिससे पैग इज यूज टू फिक्स द लोअर ब्रांच इन द सॉइल. फिक्स करने के लिए इसको यूज करते हैं. ओके, इसके बाद में आप देखिए यहाँ पर इसने आफ्टर सम टाइम दिस ब्रांच डेवलप्स न्यू रूट्स एंड न्यू लीव्स एंड स्टेम, एंड व्हेन इट ग्रोज रूट्स, जब इसमें से रूट निकल आती है, सो वी कैन कट दिस ब्रांच फ्रॉम हेयर एंड दिस न्यू बेबी प्लांट ग्रो इंडिविजुअल like a individual plant. Okay, next is grafting. So what is grafting? In this method, this method is used to develop new and better varieties of combination of two plants. जो grafting होता है इसमें two plants को कंबाइन किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और फिर क्या होता है उसमें से डिजायरेबल क्वालिटीज का जो प्लांट होता है उसको प्राप्त किया जाता है. ओके, दीज पार्ट्स कैन बी ऑफ सेम टाइप ऑफ प्लांट और ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. अच्छा, अगर इसमें से जो ग्राफ्टिंग के थ्रू न्यू प्लांट बनना है वो उस प्लांट में क्या होता है वो सेम प्लांट की ब्रांच भी हो सकती है. ठीक है, स्टेम जो ले रहे हैं, अदरवाइज वो अलग अलग प्लांट की स्टेम भी हो सकती हैं. ठीक है, जैसे कि अगर सपोज हम मैंगो का एक नया पौधा बनाना चाहते हैं जिसमें मैंगो बहुत मीठा हो और उसका साइज भी बड़ा हो, तो हम क्या करते हैं दो अगर अलग अलग
तरह के प्लांट्स हैं, जिसमें एक मैंगो ऐसा है जिसके प्लांट जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, उनकी स्टेम बहुत अच्छी होती है, ठीक है, लेकिन उनके जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो क्या करेंगे कि फ्रूट्स दूसरा जो एक प्लांट है उसमें फ्रूट्स बड़े होते हैं लेकिन उनकी स्टेम जो है बहुत ही वीक टाइप की है। तो इन दोनों की स्टेम को लेकर के जोड़ करके एक डिजायरेबल क्वालिटी का फ्रूट और प्लांट बना सकते हैं, ठीक है। द प्लांट दैट हैज वेल डेवलप्ड एंड हेल्दी रूट सिस्टम यूज्ड एज स्टॉक, ठीक है। इसमें जो प्लांट की जो दो ब्रांच ली जाती हैं, जो दो स्टेम लिए जाते हैं, उसमें जो हेल्दी रूट सिस्टम वाला जो लिया जाता है उसको स्टॉक बोलते हैं और ये नीचे रहता है आपका, ठीक है। इसके ऊपर से द अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट विच इज ग्राफ्टेड ऑन द स्टॉक इज नोन एज सायन। अब इस वाले स्टेम वाले पोर्शन के ऊपर से जो दूसरा स्टॉक वाला जो दूसरा पोर्शन रखा जाएगा स्टेम का, दैट इज नोन एज सायन, ओके। द स्टेम ऑफ द स्टॉक एंड सायन आर कट ऑब्लिकली। ऑब्लिकली मीन्स होता है इनको स्लैंटिंग टाइप में काटते हैं। सपोज दैट यहाँ पर आप देखिए ये एक आपका स्टेम है, ठीक है, तो इसको इस तरह से कट करेंगे, यहाँ से इस तरह से, तो ये आपका जो नया स्टेम का पीस बन के आएगा वो कैसा हो जाएगा आपका, इस तरह से। इनको ऑब्लिकली काटते हैं, ओके, इस तरह से कटना चाहिए। द stem of stalk and sayan are cut obliquely and placed one above the other in the such way that their vascular tissue joins together। अच्छा, vascular tissue क्या होते हैं? Have you listened this word before? So vascular tissues are of two types, दो तरह के होते हैं आपका, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, प्लांट्स के अंदर जो वाटर होता है उसको सभी पार्ट्स तक पहुंचाता है, रूट्स से एब्जॉर्ब करता है वाटर और सभी प्लांट्स के जितने पार्ट्स होते हैं, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स तक वाटर को कैरी करता है, ठीक है। दूसरा जो होता है फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है, लीव्स में आपका फूड प्रिपेयर होता है ना फोटोसिंथेसिस से, तो वो फूड वहाँ लीव्स से लेकर के इवन सभी ब्रांचेस में और फ्रूट्स तक, लीव्स में और यहाँ तक कि रूट्स में जो पहुँचाता है इस फूड को, वो होता है आपका फ्लोएम। तो ये दोनों जब होते हैं, इन दोनों को कंबाइंड रूप में वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों पार्ट जो हम ले रहे हैं स्टेम के, स्टॉक और सायन, इन दोनों के जो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं वो आपस में मिल जाने चाहिए, तब ये अच्छे से ग्रो करता है, ओके। दीज आर बाउंड टाइटली विद अ पीस ऑफ क्लॉथ और बैंडेज and is covered with a plastic wrap to avoid any infection and loss of water from the cut surface, ठीक है। प्लांट को ग्रो करने के लिए वाटर की जरूरत होती है, लेकिन अगर ये जो कट पीस जो कट करके लेके आएंगे, अगर कोई भी पोर्शन ओपन रहेगा या कट वाला जो पोर्शन है वो ओपन रहेगा तो वहां से वाटर का लॉस होगा, ठीक है। तो वाटर लॉस होने पे अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, जो कट पीस है उनको जब आपस में रखेंगे मिला करके, तो उसमें उसको बैंडेज के थ्रू या कॉटन क्लॉथ से उसके पीस से उसको अच्छे से बांध देंगे और उसको कवर कर देंगे, या तो प्लास्टिक से या फिर वैक्स से। क्यों? प्लास्टिक और वैक्स से जब हम इसको कवर करेंगे तो वाटर का लॉस नहीं होगा, ओके। आफ्टर अ फ्यू डेज न्यू सेल्स डेवलप एंड ज्वाइन द सायन एंड स्टॉक टुगेदर, ठीक है। जो वैस्कुलर टिश्यू के जो सेल्स थी वो वहाँ पर जो कट पार्ट में थी, तो वो फिर धीरे से डेवलप करती हैं और दोनों के सायन पार्ट और स्टॉक पार्ट नीचे रहता है और सायन पार्ट ऊपर रहता है। दोनों पार्ट की जो वैस्कुलर टिश्यूज की सेल्स होती हैं वो आपस में ज्वाइंट हो जाती हैं और अच्छे से जो फ्लोएम और जाइलम का जो वर्क होता है वो अच्छे से होने लग जाता है, मीन्स वाटर का ट्रांसपोर्टेशन और फूड का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। दिस मेथड इज यूज टू गेट डिजायर्ड वेराइटीज ऑफ मैंगो, रोज, पियर एंड लेमन, ठीक है। इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं इनकी डिजायरेबल क्वालिटी के स्पीसीज बनाते हैं, या डिजायरेबल क्वालिटी का जो प्लांट होता है उसको ग्रो करने के लिए ये यूज किया जाता है, ग्राफ्टिंग। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ ग्राफ्टिंग। हियर यू कैन सी दिस इज द सायन पार्ट that remains above the stalk.
स्टॉक जो होता है वो नीचे का पार्ट होता है, ये एक अच्छे हेल्दी रूट सिस्टम वाले स्टेम से लिया जाता है, दैट इज नोन एज स्टॉक। और जो अपर पार्ट होता है जिसमें फ्रूट्स और फ्लावर्स की क्वालिटीज अच्छी होती है उसको शाइन के रूप में लेते हैं। और यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ पर दोनों को टच करके इस तरह से बैंड कर देते हैं, बैंडेज के थ्रू इसको ज्वाइंट करके और अच्छे से टाइटली बांध दिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, इसके ऊपर से वैक्स या फिर प्लास्टिक से इसको रैप कर देते हैं टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट इज टिश्यू कल्चर। लेट्स सी what happens in the tissue culture. It is a technique of raising new plants from a tiny portion of a plant tissue called explant on a culture of synthetic medium under the aseptic condition. Okay, दिस टेक्निक मीन्स इस तरह का जो टेक्निक है, टिश्यू कल्चर की जो टेक्निक है, उससे एक न्यू प्लांट बनाने के लिए या ग्रो करने के लिए क्या होता है, एक टाइनी पोर्शन, एक छोटा सा पोर्शन लिया जाता है किसी एक हेल्दी प्लांट से। और जो पोर्शन होता है उसमें क्या होता है, मेनली हम टिश्यूज लेते हैं। ठीक है, उस प्लांट के टिश्यूज लेते हैं और वो टिश्यूज क्या कहलाते हैं, एक्स प्लांट। ओके, इसको क्या करते हैं, सिंथेटिक मीडियम में, इसको एसेप्टिक कंडीशन मतलब कि जहाँ पे कोई भी ऐसा जर्म्स या बैक्टीरिया ना हो, यानी कि फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन, मीडियम दैट इज फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन इज नोन एज एसेप्टिक कंडीशन और एसेप्टिक मीडियम। ओके, इसमें इस एक्स प्लांट के या जो टिश्यू वाला प्लांट पोर्शन लिया गया है प्लांट से, उसको उसमें रख देते हैं। ठीक है, द सेल्स ऑफ टिश्यूज डिवाइड एंड ग्रो। जो टिश्यूज के अंदर सेल्स होती हैं, जो आपका टिश्यू होता है वो सेल से मिलकर बनता है। ठीक है, तो जो सेल्स टिश्यूज में आ गई हैं वो क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं, यानी कि उनके सपोज यहाँ पर 4 टिश्यू है, 4 टिश्यू के अंदर बहुत सारी सेल्स होती है, तो एक एक टिश्यू 2-2, 3-3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। और एक ऐसा अनऑर्गेनाइज्ड, यानी कि कोई उसका सिस्टम नहीं होता है कि किस तरह से अरेंज होंगी, वो एक मास ऑफ सेल्स के रूप में, मतलब इस तरह से सपोज यहाँ पर जो है ये ऐसे ऐसे एक सेल है, फिर ये डिवाइड हो जाएगी, तो ये डिवाइड होते होते आपस में ऐसे ऐसे टच करके, उनका कोई भी शेप फिक्स नहीं होता, ये कहीं से भी आपस में ज्वाइंट होके एक अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, कैलस। मीन्स यहाँ पे कैलस क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स। ठीक है, देन सर्टेन हॉर्मोन्स आर एडेड टू द मीडियम। अच्छा, मीडियम का मतलब होता है एक लिक्विड जैसा, जिसके अंदर ये आपका टिश्यूज रखे जाते हैं। उस जो मीडियम है, जो वाटर या लिक्विड है, उस लिक्विड में कुछ हॉर्मोन्स ऐड किए जाते हैं। हॉर्मोन्स क्या, उसकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी को हॉर्मोन्स की जरूरत होती है ग्रोथ के लिए, उस तरह से। ठीक है, विच इंड्यूस प्लांटलेट फॉर्मेशन। इंड्यूस मीन्स होता है उसको मोटिवेट करता है, जो आपका हॉर्मोन्स होता है वो क्या करता है, ग्रोथ के लिए उसको मोटिवेट करेगा, उन सेल्स को एक तरह से सपोर्ट करेगा कि सेल्स अच्छे से डेवलप हो सके और ग्रो कर सके। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ स्मॉल टिश्यू। एक स्मॉल टिश्यू से बहुत थाउजेंड्स ऑफ मतलब हजारों प्लांटलेट्स यानी छोटे छोटे पौधे बन सकते हैं। दीज प्लांटलेट्स आर देन ट्रांसफर्ड टू द मॉइस्ट सॉइल। ठीक है, जब ये प्लांटलेट्स के रूप में आ जाते हैं तो एक एक प्लांटलेट्स को जब सॉइल में आप इसको लगा देंगे, प्लांट कर देंगे, तो क्या होगा, उससे एक नया प्लांट, आपका इंडिविजुअल नया प्लांट बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, सो टिश्यू कल्चर इज ऑर्चिड्स, क्राइसैंथेमम एंड एस्पैरागस कैन बी ग्रोन विद थ्रू दिस मेथड। इस तरह के प्लांट्स जो होते हैं, ऑर्चिड, क्राइसैंथेमम, एस्पैरागस, इनको टिश्यू कल्चर के थ्रू उगाया जा सकता है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज टिश्यू कल्चर डायग्राम। विद द डायग्राम यहाँ पे आप दे सकते हैं, दिस इज अ प्लांट। अब इस प्लांट से एक यहाँ पे लीफ के पोर्शंस, लीफ का एक छोटा सा पोर्शन लेके इस टेस्ट ट्यूब में आप देख रहे हैं रखा गया है। ठीक है, अब इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, लिक्विड डाला जाता है, जिसमें क्या होता है, इसके लिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं और हॉर्मोन्स वगैरह।
ठीक है, ये ग्रो करके अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मास ऑफ सेल यानी कैलस बन गया। इस कैलस में से फिर एक प्लांटलेट बन के तैयार हुआ है। इस प्लांटलेट को वैसे बहुत सारे यहाँ पे बनते हैं, बट यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू एक ही आपको दिखाया गया है। ठीक है, इस प्लांटलेट को जब सॉइल में प्लांट कर देते हैं तो इससे एक न्यू इंडिविजुअल प्लांट आपका डेवलप हो जाता है। ओके, सो दिस इज द टिश्यू कल्चर। लेट्स सी अनदर डायग्राम ऑफ टिश्यू कल्चर टू अंडरस्टैंड दिस मेथड। हियर यू कैन सी दिस इज द कोनिकल फ्लास्क। एक कोनिकल फ्लास्क में आपको लिया गया है, एक यहाँ पर ये जो लिए गए हैं ये क्या है, टिश्यू है। ओके, और ग्रोथ मीडियम मीन्स अ लिक्विड दैट हैज न्यूट्रिएंट्स एंड सम ग्रोथ हार्मोन्स, इस टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू टेकन फ्रॉम वन प्लांट, यहाँ पे जो इस टिश्यू के स्मॉल पीसेस लिए गए हैं। आफ्टर सेवरल डेज, कुछ दिनों बाद क्या होता है, ये टिश्यू जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड होके एक मास बन जाती है, यानी कि इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारी सेल्स हैं छोटी छोटी सी। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी सेल्स का जो एक ग्रुप बन गया है उसको क्या बोलते हैं, कैलस। ओके, फिर इस कैलस को ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है एक तरह से, मतलब इसमें चेंजेस होते हैं। चेंजेस होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर ये प्लांटलेट के रूप में डेवलप हो जाता है। प्लांटलेट मतलब जिसमें एक रूट्स वाला पार्ट भी है और ये ऊपर लीव्स भी, यानी कि रूट्स, स्टेम और लीव्स बन जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पर करते क्या है कि न्यू ग्रोथ मीडियम, यानी कि यहाँ पे कुछ और मीडियम में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स डाले जाते हैं। तो इन मीडियम में कुछ चेंजेस करके इसको एक न्यूट्रिएंट्स वाला पूरा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे कि एक न्यू स्मॉल प्लांट बन जाता है। अब स्मॉल प्लांटलेट को, इस वाले प्लांटलेट को जब सॉइल में प्लांट कर देते हैं तो क्या करता है, एक न्यू इंडिविजुअल प्लांट के रूप में ग्रो कर जाता है। ओके, now we will discuss about the advantages of vegetative propagation। जो vegetative propagation के अभी हमने मेथड देखे चार, उनका कुछ एडवांटेजेस होते हैं, उनके क्या फायदे होते हैं, क्या उपयोगिताएं होती हैं। लेट्स सी। सो इट इज अ क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लाइंग अ प्लांट। ठीक है, अभी अपने हम यहाँ पर जो टिश्यू कल्चर देखा उसमें क्या देखा, एक छोटे से टिश्यू से बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट्स बन जाते हैं। तो इट इज़ अ क्विक मेथड, मतलब इस एक मेथड से क्या होता है, एक तो बहुत ही एक क्विक होता है, यानी कि जल्दी जल्दी, और मल्टीप्लाइंग प्लांट्स यानी कि बहुत जल्दी जल्दी इसमें से जो सेल्स होती है डिवाइड होके इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स बनाए जा सकते हैं। मल्टीप्लाइंग का मतलब होता है कि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखते हैं उनके नंबर्स किस तरह से बढ़ते जाते हैं, तो ये एक इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट इज वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट्स रिक्वायर लेस टाइम टू मैच्योर एंड बियर मोर फ्रूट्स दैन दोज ग्रोन फ्रॉम द सीड्स। ये क्या होता है, इसमें एक फायदा ये भी है कि जो वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट्स होते हैं, यानी कि वेजिटेटिव मेथड के थ्रू जो रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें मेच्योर होने के लिए बहुत कम टाइम लगता है और इनमें फ्रूट्स बहुत ज़्यादा बन के आते हैं कंपेरेटिवली सीड्स वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके जो फ्रूट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द न्यू प्लांट आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट। अच्छा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और एसेक्सुअल दोनों की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो न्यू प्लांट होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होता है पेरेंट प्लांट की, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होती। जितनी क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट प्लांट की होती है सेम वैसा ही इसमें जो आपका बेबी प्लांट होता है उसमें होती है। ठीक है, सो ऑल द डिजायर्ड क्वालिटीज ऑफ द पेरेंट प्लांट कैन बी ऑब्टेन्ड इन द न्यू प्लांट। ठीक है, अगर जो डिजायर्ड जो क्वालिटीज उसके अंदर है, अगर हम चाहते हैं कि वही प्लांट में, न्यू प्लांट में आए, तो वो ये जो मेथड है बहुत ही यूजफुल है। नेक्स्ट इज इवन सीडलेस प्लांट्स लाइक बनाना, सुगर केन एंड पाइनएप्पल कैन बी इजीली ग्रोन बाय दिस मेथड। जो सीडलेस प्लांट होते हैं जिनमें सीड्स नहीं होते हैं, जैसे कि आपका बनाना हो गया, सुगर केन हो गया, पाइनएप्पल। ठीक है, हम जैसे कि जानते हैं कि प्लांट जो होता है सीड से ग्रो करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ सीडलेस प्लांट्स भी होते हैं जिनको ग्रो होना होता है या जिनसे हमें न्यू प्लांट बनाना होता है। तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है बहुत ही यूजफुल होता है। ओके, प्लांट्स डेवलप्ड बाय दिस मेथड यूजुअली नीड लेस अटेंशन दैन प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम द सीड्स। अगर जो कोई प्लांट जो सीड से ग्रो कर रहा है उसको ज़्यादा अटेंशन देनी पड़ती है, उसकी केयर करनी पड़ती है, लेकिन वेजिटेटिव मेथड से जो आपके प्लांट्स आते हैं बन के, वो क्या होता है, उनमें अटेंशन बहुत कम देनी होती है। ओके,
Now we will discuss about some disadvantages of vegetative propagation. As the every method having some advantages and disadvantages, so let's see disadvantages of vegetative propagation. Disease present in the parent plants spread to all the daughter plants. अच्छा, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमने देखा कि जो बिल्कुल क्वालिटीज़ होती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट प्लांट में होती हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आपके डॉटर प्लांट में भी होता है, या फिर जो न्यू प्लांट ग्रो करता है. तो अगर पेरेंट प्लांट में कोई डिजीज़ है तो वो भी आपके डॉटर प्लांट में या बेबी प्लांट में आ जाएगी, न्यू प्लांट में. ओके. एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेलस कैन नॉट बी स्टोर्ड लाइक सीड्स. प्रोपेगेलस मतलब जो बर्ड्स हमने जिनसे देखा कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, बर्ड्स होती हैं, वही ग्रो करके एक न्यू प्लांट में बन जाती हैं. ठीक है. तो यानी कि एक देखा जाए तो एक सीड की तरह हो गया जिससे हमें एक न्यू प्लांट मिल रहा है. बट इन जो प्रोपेग्यूल्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं, इनको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं. जैसे कि सीड्स को हम स्टोर कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट सीजन में सीड्स से हम न्यू प्लांट गेन करते हैं, लेकिन ये प्रोपेगेलस को स्टोर नहीं किया जा सकता. ठीक है, ये डिसएडवांटेजेस हो गया. ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ प्लांट्स विद इन अ रेस्ट्रिक्टेड रीजन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कॉजेज ओवर क्राउडिंग विच इंक्रीजेज कॉम्पिटिशन. ठीक है. अब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ प्लांट्स यानी बहुत सारे जो प्रोडक्शन होता है प्लांट्स का, वो एक रेस्ट्रिक्टेड रीजन में होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर रीजन में होता है. तो उससे होता क्या है कि ओवर क्राउडिंग हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा प्लांट्स हो तो भीड़ हो जाती है, जिससे क्या होता है उनके बीच में कंपटीशन बढ़ जाता है. कंपटीशन कैसा, यानी सेम टाइप के प्लांट्स को सेम टाइप का न्यूट्रिएंट्स चाहिए. ठीक है. उन न्यूट्रिएंट्स की वहाँ पे कमी होने लगेगी उस सॉइल में. ठीक है. और क्या होगा, वाटर के लिए वहाँ पे कंपटीशन हो जाएगा. तो इस तरह के कुछ कंपटीशन उनके आपस में होने लग जाते हैं. ये इसका डिसएडवांटेज है. The vegetative propagated plants are unable to adapt in changing environment. क्या होता है कि ये जो प्लांट होते हैं वो उन सेम कैरेक्टर्स रहते हैं, तो इनके अंदर ये अडेप्टेशन डेवलप नहीं हो पाता है कि वो अपने आप को एक इन्वायरमेंट के चेंज के हिसाब से अपने आप को भी चेंज कर लें और उस न्यू एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लें. तो इस तरह के अडेप्टेशन इसमें नहीं हो पाते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक properly, and so this was for the today. So we will meet in next video. Till then, be happy and bye bye.